गुड इवनिंग गाइस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 3। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ 32 ਐਮਸੀਕਿਊ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, A vector ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਹੈ, B vector ਵੀ given ਹੈ, then projection of vector A on B divide by projection of vector B on A। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਲਗਾਈਏ projection A on B ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A dot B और नीचे आएगा B vector। इदा ही ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड फिर नीचे वाले ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ B on A ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ A dot B ਤਾਂ और नीचे A on A है ਤਾਂ A vector ਦਾ मैग्नीट्यूड। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A vector upon B vector ਦਾ मैग्नीट्यूड। यानी कि ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ A vector ਦਾ मैग्नीट्यूड ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 plus 9 plus 36। नीचे B vector ਦਾ मैग्नीट्यूड 4 plus 4 plus 1। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 49 रूट और नीचे हो गया √9। हाँ ये हो गया 7 नीचे हो गया 3 ਤਾਂ 7/3 क्योंकि 7/3 आंसर आ राइट आंसर डी। ऐदा आप फाइंड करना आप A डॉट B इतने फाइंड नहीं करांगे क्योंकि A डॉट B की हो जाएगा कैंसल ही हो जाएगा अपने को। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A/B। ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/7 ਵੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3/7 ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ B/A ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 3/7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ A/B ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/B ਵੈਕਟਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ में A ਵੈਕਟਰ अपॉन 1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ अपॉन B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆंसर है वो B ऑप्शन है। क्लियर क्लियर हो गया क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इफ द फोर्स अपन एक फोर्स गिवन है Fi प्लस 2J प्लस 3K मूव्स फ्रॉम कितना मूव कर रही है वो I प्लस J माइनस K टू 2I माइनस J प्लस K। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक की हो रहा है डिस्प्लेस हो रही है फोर्स तो ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लांगे। सब तो पहला डिस्प्लेसमेंट अपने की आएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2I माइनस I माइनस J माइनस ਦਾ 2J और K माइनस K प्लस ਦਾ 2K। ठीक है जी। आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो हम आप फाइंड करना वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला की होंगे F फोर्स इनटू में डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ना और इतने वैक्टर नहीं आएगा तो F एक ही है I प्लस 2J प्लस 3K इनटू में डॉट I माइनस 2J प्लस 2K तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 6 हो गया 7 माइनस 4 3। राइट आंसर कितना आ गया अपना ए ऑप्शन 3 राइट। क्लियर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर राइट ऑफ सब ਦਾ सही आंसर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 if theta be the angle between the vector A and B then
ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, cos ਥੀਟਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a1 b1 a2 b2 a3 b3 upon magnitude of first vector a1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस a2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस a3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ b1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ b2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ b3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, i ਦੀ i ਵਾਲੇ ਨਾਲ 6 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, नीचे मैग्नीट्यूड फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड 4 + 1, सैकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड 36 + 9 + 4, ऊपर कितना आ गया 12 चो 8 गए 4, नीचे √9 लिखांगे 3, √49 लिखांगे 7, 4/21। cos थीटा कितना आ गया 4/21 और थीटा कितना आएगा cos इनवर्स 4/21। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਓਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 36, a क्रॉस b का स्केयर प्लस a डॉट b का स्केयर इज इक्वल टू 144 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a 4, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। आ फाइंड करना। तो देखो एक केड़ी आइडेंटिटी अपने को, लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी बहुत इंपोर्टेंट है, मैं तुहानू पहला भी दस्सिया, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है अपने एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 100% ਚਾਂਸ ਨੇ। लैग्रेंज आइडेंटिटी ਜਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਗਰੈਂਜ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a क्रॉस b ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस a डॉट b ਦਾ ਸਕੇਅਰ इज इक्वल टू a ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਨਟੂ में मैग्नीट्यूड b ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 144, a ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 4, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਨਟੂ में b ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ b ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, क्या आ जाएगा 144, 4 10 के 16 डिवाइड हो जाएगा, 16 एक कितने कट्टा जाएगा 9, बी स्केयर कितना आ गया 9, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ v ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ v, ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ v ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ 3 ਰਾਈਟ, ਨੰਬਰ 3 ਰਾਈਟ। सबका सही आंसर है जी राइट, और रितु राइट, अमन जो ऑल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 37, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are। एरिया किवें फाइंड करते सी आपां पैरेललोग्राम दा, देखो अपने कोले पैरेललोग्राम हुंदी है, एडजेसेंट साइड लैंदे सी आपां, आ दोनों साइड लै लियां, मतलब एडजेसेंट साइड है ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूजे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ मीट कर रही टच कर रही, तो एडजेसेंट साइड ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, जेकर अपन नाम दईए ए बी सी डी, तो यदा एरिया हो जाएगा ए बी क्रॉस ए डी, इदा ही आप लेंगे और बाद चौदा मैग्नीट्यूड 2 नाल इत्थे डिवाइड नहीं करांगे, 1/2 नाल मल्टीप्लाई या 2 नाल डिवाइड कह सकते हैं आप, वो नहीं करांगे क्योंकि अगर आप इदा एरिया फाइंड करते हैं 2 नाल डिवाइड नहीं करते, अगर आप डायगनल नाल एरिया फाइंड करते हैं फिर आप 1/2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 2 नाल डिवाइड करते हैं। ये दोनों की कोई गल है, 2 नाल डिवाइड बोल दो चाहे 1/2 नाल मल्टीप्लाई बोल दो, तो अगर डायगनल नाल एरिया फाइंड करांगे डायगनल नाल फिर 1/2 आएगा, अदरवाइज 1/2 नहीं आएगा। तो कर लो जी फाइंड। सब तो पहला तो डिटर्मिनेंट फाइंड करो, मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बाद च कर लवांगे, सिंपल पहला वैक्टर फाइंड करो, तो आई जे के ए बी की अपने को 1 -2 3 2 1 -4। जल्दी जल्दी करो जी, तुसी भी आंसर टाइप करो, फिर ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ आई नाल करे ਆਪਾਂ,
+8 -3 5 -j -4 -6 -10 +k 1 +4 5 आ गया अपने को 5i +10j +5k। ये तो अपने को आ गया AB क्रॉस AD, ये आ गया AB क्रॉस AD। ठीक है जी। तो हम आप पैदा फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड 5 10 स्केयर 25 10 का 100 फिर 5 का 25 तो कितना हो गया है 150। तो देख लो 25 अंदर जाएगा 75 10 अंदर जाएगा 300 5 अंदर जाएगा 25 का 150 10 अंदर जाएगा 600। रॉन्ग सॉरी रॉन्ग है, ओनली राइट की है सी ऑप्शन, क्योंकि ये भी 150 बनेगा ना। इन्होंने लिख सकते हैं 25 गुना 6 25 चौका 100 25 का 150। हाँ ये भी 150 बनेगा √150 ये भी √150। ऑप्शन नंबर सी की हो गया अपने राइट हो। चलिए 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप whose contain minus as a एज देते हुए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੂਮ ਪੈਰਲਲ ਪਾਈਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਪਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਰਲਲ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ए बी सी ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਲੂਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ए सी ए ओ और ए बी। ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਐਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਐਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/6 ए सी क्रॉस ए बी क्रॉस ए ओ आ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 1/6 ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 1 -1 1 2 -4 5 3 -5 2 आगे जी सारे ਇਹਦਾ ਕਰ ਦੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 1 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -8 +25 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 17। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -1 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ प्लस 4 -5 × 15 -11 फिर आएगा अपने को प्लस 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -10 +12 + 2 ਇਹ हो गया अपने को 17 -11 + 2 19 19 ਚੋਂ 11 ਗਏ ਰੋਂਗ आ रहे हैं 11 ਚੋਂ 11 गए 6 ਤੇ 2 8 नहीं होना चाहिए 1/6 भी आएगा ना आगे। मिस्टेक हो गई अपनी 1 -1 1 2 -4 +5 3 -5 + 2 ठीक है जी 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -8 +25 आ गया ठीक है -s +1 ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 -15 -11 आ गया 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -10 +2 क्यों कितना आ गया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड रॉन्ग हो गया है ना। ओके ठीक है जी बिल्कुल राइट है इतने 1/6 नहीं आएगा। ਆਪਾਂ ਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਦੀ ਇਹ ਪੈਰਲੋਪਾਈਪਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੋਪਾਈਪਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ क्रॉस प्रोडक्ट ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ क्रॉस प्रोडक्ट 8 आ गया आंसर डी ऑप्शन है।
ठीक है जी। आ अपने को मिसटेक हो गई सी, इन्हू आप टैट्राहेड्रल समझ बैठे सी, मैं सोचा कि टैट्राहेड्रल मैं ध्यान नाल नहीं पढ़िया। तो आ अगर एरिया अपने को आंदा 1/6 नहीं आएगा, 1/6 सिर्फ टैट्राहेड्रल दे विच आंदा है, अदरवाइज 1/6 नहीं आंदा। पैरेललोपाइपेड दा सिंपल ही अपने को आंसर आएगा, 8 आंसर आ नंबर डी। ठीक है जी। सिंपल ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ डिटर्मिनेंट करना बस, और कुछ नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइड भी। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ AABC ਇਹਨਾਂ ਦਾ स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर। 8 आंसर 1/6 नहीं। क्लियर हो गया। थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई सी, ਤਾਂ ਹੁਣ आई थिंक दूर हो गई होएगी कन्फ्यूजन, क्योंकि टैट्राहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1/6 ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, अदरवाइज पैरेललोपाइपेड क्यूबॉइड ਜਾਂ क्यूब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1/6 नहीं ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ਕਰਦੇ। क्वेश्चन नंबर 39 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ABC ਆਏਗਾ, ਕਿ 2ABC ਆਏਗਾ, ਕਿ 3ABC ਆਏਗਾ, ਕਿ 0 ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ABC ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੋਂਗ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 if A vector, B vector, C vector are coplanar vector then the value of alpha। coplanar ने ਤਾਂ डिटर्मिनेंट ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। रख दो जी डिटर्मिनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। A ਵੈਕਟਰ ਫਿਲ ਕਰੋ 1 1 -1, B ਵੈਕਟਰ ਫਿਲ ਕਰੋ 2 3 1, C ਫਿਲ ਕਰੋ 1 अल्फा, K है नहीं ਤਾਂ 0 कर दो जी। 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 0 0 माइनस अल्फा, फिर -1 ਨਾਲ करता 0 -1 -1 ਨਾਲ फिर करता 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। माइनस अल्फा +1 -2 अल्फा +3 is equal to 0। माइनस का 3 अल्फा प्लस द 4 is equal to 0। -3 अल्फा is equal to -4, माइनस ना माइनस कैंसिल, अल्फा आ गया 4/3। हाँ ये आ गया जी राइट आंसर सी। इत्थे भी एक लालच है देखो, अगर अपने को माइनस जी मिसटेक हो गई ना माइनस की, तो आप आ लालच दे विच फस जाना है -4/3 लालच। इस मिसटेकों तो बचना है ਆਪਾਂ। अगर इतने गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, अगर मतलब इतने थोड़ी जी अपने को मिसटेक होगी ना किसी स्टेटमेंट के विच, तो आप इस लालच के विच फस जाना माइनस प्लस वाले लालच में। राइट आंसर अपना की है सी, बट रॉन्ग आप कर देवांगे अगर अपने को माइनर जी मिसटेक हो, तो माइनर मिसटेकों तो बचना है। ठीक है जी, ਤਾਂ ही अपना आंसर की आएगा राइट आएगा। जल्दबाजी इन्नी भी नहीं करनी होंगी आप एग्जाम के विच कि आप आंसर गलत कर लिए। हाँ स्पीड रखनी पैंदी है वो ठीक है, बट माइनर मिसटेक तो बचना है। क्लीयर हो गया क्वेश्चन नंबर 40 किद्दां आपां फाइंड कीता अल्फा 4/3 आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 41 इफ द वेक्टर 3i plus 2j minus k and 6i minus 4x plus j plus yk are parallel, then the value of x and y। तो वैक्टर पैरेलल ने तो इन्हों के रेशो की होएगा सेम, यानी कि A1/A2 B1/B2। देखते हैं सब तो पहला कौन आंसर दिता है इस क्वेश्चन का C1/C2। कर लो जी कंपेयर 3/6 2/-4x -1/y। पहला इन ये इक्वल रख दो, ये आ गया 1/2 -4x क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई -1, x -1 आ गया, आ भी कैंसिल दो बच गए। ठीक है, तो हम इतों -1/y इनू रख लो 1/2 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू -2, y कितना आ गया -2, तो आ भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए राइट।
देखने ਨੂੰ टफ क्वेश्चन लगता है इदां दा, बट बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आप कोफिशिएंट ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ फाइंड करनी ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। क्वेश्चन नंबर 42, if the vector ai minus 2j plus 3k plus and 3i plus 6j minus 5k are perpendicular to each other, then a is given by। परपेंडिकुलर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ परपेंडिकुलर ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ? ਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ परपेंडिकुलर ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। परपेंडिकुलर ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ परपेंडिकुलर ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 is equal to 0। ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। a ਦੀ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 3a, -2 ਦੀ 6 ਨਾਲ ਕੀਤੀ -12, 3 ਦੀ -5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ -15 is equal to 0। ਤਾਂ 3a is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਲਲ ਕੀਤਾ, परपेंडिकुलर ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट ने इदा दे कोपलेनर कोलिनियर परपेंडिकुलर कोपलेनर, इन्हां दे विच क्वेश्चन आपां नूं अड़दा ही अड़दा एग्जाम दे विच। कोपलेनर कुछ भी दिता होएगा तो कहणगे दी वैल्यू फाइंड करो, चाहे तो आपां नूं कोलिनियर दिते होण, चाहे कोपलेनर दिते होण, चाहे पैरेलल दिते होण, चाहे परपेंडिकुलर दिते होण। आ चार टाइप दे विचों एक क्वेश्चन बनदा ही बनदा है ते वैल्यू फाइंड करन नूं बोलदे आ। लैम्डा ए कांस्टेंट, लैम्डा के पी कुछ भी हो दिता हो सकदा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, if a plus b the magnitude is equal to a minus b the magnitude, then angle between a and b। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, a plus b ਦਾ magnitude is equal to a minus b ਦਾ magnitude। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਔਨ both side ਕਰ ਦੋ ਜੀ। a plus b ਦਾ ਸਕੇਅਰ, a minus b ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ magnitude of a square magnitude of b square plus 2a dot b is equal to magnitude a square magnitude b square minus 2a dot b। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4a dot b is equal to 0। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 4 magnitude A magnitude B cos theta is equal to 0। 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, आ 0 हो नहीं सकता, आ 0 हो नहीं सकता क्योंकि आपको गिवन है A वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, B वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। तो इतों की होएगा cos theta 0, cos theta 0 हो गया तो थीटा कितना आ गया 90। वैसे ही आपको रिजल्ट याद होता है डायरेक्ट कि थीटा इस केस 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, if a b c are unit coplanar vector then the scalar triple product। दसो जी आंसर, विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए ਤੁਹਾਡਾ, विद इन सेकंड। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 44 क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो जल्दी ना, की आएगा। कोपलेनर ने कोपलेनर गिवन है तो कुछ भी देखने की लोड़ नहीं। आंसर 0। 45, डायरेक्शन ऑफ जीरो वैक्टर। लो जी, ये भी तुहाडे लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कि याददाश्त कमजोर है। सब तो पहली कमजोर नहीं सॉरी तेज, कि याददाश्त तेज है। ये आप पहली क्लास दे विच ही शुरू दे विच ही विद इन
2 मिनट ऑफ क्लास ये कंसैप्ट कीता सी विदिन 2 मिनट ऑफ क्लास डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर कौन दसेगा जी ਇਹਦਾ आंसर does not exist toward origin indeterminate none of these डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर जिन्होंने क्लास लगाई होएगी ध्यान नाल सुनिया होएगा ते याददाश्त तेज होएगी उन्होंने ਇਹਦਾ आंसर बिल्कुल याद होएगा कि याद दा आंसर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ 0i plus 0j plus 0k ਜਿਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी है क्लियर क्वेश्चन नंबर 45 ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ क्वेश्चन नंबर 46 द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ 2i ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ 3j ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ -5k ਵੈਕਟਰ ਤਿੰਨਾਂ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है ਆਪਾਂ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 0 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 3 0 0 0 -5 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ 2 क्रॉस 3 क्रॉस -5 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ -30 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ क्लियर डायगोनल एलिमेंट का ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ क्लियर क्वेश्चन नंबर 47 if a b c are joint vector such that a plus b plus c 0 then the value of a dot b dot c plus c dot a ए बी सी यूनिट वैक्टर ने सब तो पहला ये गल पढ़नी जरूरी है कि ए बी सी की ने यूनिट वैक्टर फिर अपन आ गिवन है कि गिवन है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 तो आप फाइंड की करना है आ फाइंड करना आप स्केलिंग कर दिए स्केलिंग करता जी तो ਇਹਦਾ स्केल की आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ਇਹਦਾ स्केल मैग्नीट्यूड बी ਦਾ स्केल क्योंकि ए डॉट ए बनेगा ना ਉਹਨੂੰ लिख सकते हैं ए ਦਾ स्केल बी ਦਾ स्केल प्लस सी ਦਾ स्केल प्लस 2a डॉट बी फिर बनेगा 2b डॉट सी का 2 बाहर आ गया b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए का 2 बाहर c डॉट ए इज इक्वल टू 0 हम आ कितना है यूनिट वेक्टर है 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में a डॉट बी b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल टू 0 उधर जाके की हो जाएगा माइनस का ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए फाइंड करना सी ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -3 अपॉन 2 नंबर सी ਦਾ क्लियर नंबर सी की होगी अपने को राइट क्वेश्चन नंबर 48 देखो कोलिनियर वाला आ गया चारों कंसेप्ट आप कर चुके हैं डिफरेंट टाइप कोलिनियर कोप्लेनर पैरेलल ठीक है जी तीन पोजीशन वैक्टर ने ਜਿਹੜੇ कोलिनियर ने तो लैम्डा फाइंड करना है कोलिनियर ने तो डिटरमिनेंट रख दो 0 पहला की अपने को a1 -2 3 दूसरा की है 2a प्लस लैम्डा -4 तीसरा अपने को a है नहीं 0 है b वाला -7 है c वाला 10 कर दो जी डिटरमिनेंट सॉल्व 1 नाल कीता 10 लैम्डा माइनस 1 नाल कीता 10 लैम्डा -28 फिर माइनस नाल करांगे तो -2 है प्लस 2 हो जाएगा 20 -0 फिर आ गया इतना 0 तो 3 नाल कीता प्लस 3 3 ना करांगे माइनस का 14 सिंपली 14 लैम्डा की 0 ना करांगे 0 इज इक्वल टू 0 तो हो गया 10 लैम्डा -28 प्लस 40 -42 इज इक्वल टू 0 10 लैम्डा
ये कितना हो गया अपने को माइनस का 50 ਤੇ 20 70 70 ਤੋਂ 40 गए माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 और 10 लैम्डा इज इक्वल टू 30 लैम्डा कितना आ गया इतों 3 आ गया ऑप्शन नंबर सी लैम्डा 3 राइट आंसर ठीक है जी इतना आप फाइंड करना कोलिनियर क्वेश्चन नंबर 49 इफ u vector v vector and w vector such that u plus v plus w is equal to 0 u vector ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ v vector ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ w vector ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ u dot v plus v dot w plus v w dot u फाइंड करना है करो जी फाइंड ਤੁਸੀਂ फाइंड करना है सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ u plus v plus w ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਕੁਅਰ u vector ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ v vector ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ W ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਟੂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ p p ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ p ਹੋ ਗਿਆ इज इक्वल टू क्या आएगा 0 अब फिल कर दो ये आएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16 5 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2p इज इक्वल टू 0 हो गया 50 2p इज इक्वल टू -50 p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -25 ਤਾਂ p ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ क्लियर क्वेश्चन नंबर 14 50 क्वेश्चन जी द वैल्यू ऑफ a plus b plus c plus a is equal to ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ 0 ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 0 ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ a b c ਕੋਪਲੇਨਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਗਿਵਨ ਨੋਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸੋਲਵ डिटर्मिनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ a1 b1 c0 a0 b1 c1 a1 b0 c1 डिटर्मिनेंट ਇਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 -0 प्लस 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ 1 0 0 ये आएगा ना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्योंकि कॉमन आ जाएंगे सारे ठीक है ऐसे लिख देंगे आप तब 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 ये माइनस भी आएगा जाएगा -1 1 प्लस 1 ये अपने को पे है ए बी सी ठीक है ये कितना हो गया 2 टाइम्स ए बी सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट सबका सही है 2 ए बी सी ऑल राइट गुड क्वेश्चन नंबर 51 ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की होएगा 0 1 ए स्केयर ए जल्दी ना रिप्लाई करो देखते हैं जी किहदे विच कंसेप्ट क्लियरिटी है किनू ये आंसर आंदा है 0 1 ए मैग्नीट्यूड ए दा स्केयर मैग्नीट्यूड ए कौन करेगा इसका आंसर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर राइट आंसर दसो इहदा दसो जी राइट आंसर कौन दसेगा जिन्होंने भी 0 दसिया वो सारे की ने रॉन्ग इसका राइट आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीट्यूड ए दा स्केयर क्योंकि आप देखो ए डॉट ए करना है ए डॉट ए की होएगा मैग्नीट्यूड ए दा स्केयर होएगा जो भी आप गल करते हैं आई डॉट आई वो की होंगे अपने को 1 होंगे ना तो देखो ए की है कैप इतने की अपने को वैक्टर ए डॉट ए वैक्टर की होएगा मैग्नीट्यूड ए दा स्केयर होएगा डॉट प्रोडक्ट कदे भी 0 नहीं दिंदी आपां नूं ये ध्यान दे विच रखियो डॉट प्रोडक्ट कदे भी 0 नहीं दिंदी सेम कंपोनेंट दी सेम ता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट क्लियर
क्वेश्चन नंबर 52 ए वैक्टर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ए वैक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड √26 बी वैक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ए क्रॉस बी ਦਾ मैग्नीट्यूड ए ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 35 फाइंड करना है ए डॉट बी किवें फाइंड करांगे है जी कोई तरीका एक तरीका हैगा ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਇਸ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ a क्रॉस b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਡਾਟ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्केयर मैग्नीट्यूड बी का स्केयर ए क्रॉस बी कितना है 35 35 का स्केयर 35 का स्केयर यानी कि प्लस आ फाइंड करना है एज इट इज रख लो मैग्नीट्यूड ए का स्केयर तो ये हो गया √26 का स्केयर 26 ही हो जाएगा ओनली तो बी बी का स्केयर कितना 49 ए डॉट बी का स्केयर कितना आएगा इन्हों की मल्टीप्लाई कर लो जल्दी ना करो कैलकुलेटर है किसी को करो भी लभना पैना शायद फोन 26 इंटू 49 कितना आ गया ये आ गया 1274 यानी कि 1274 माइनस माइनस होएगा 35 का स्केयर 35 गुना 35 1225 1225 ए डॉट बी कितना आ गया दस स्केयर ये आ गया 49 बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ a ਡਾਟ b ਤਾਂ a ਡਾਟ b ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ 7 ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 43 sorry 43 नहीं 53 the points with position vector 2 6 1 2 and 8 10 are collinear then wait ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ कि 1/2 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 6 1 1 2 1 और 8 10 1 ठीक है जी तो 1/2 तो उधर जाके 0 ही हो जाना तो 2 नाल कर दो 2 माइनस 10 माइनस 8 6 नाल कर दो माइनस 6 नाल किया तो 1 माइनस 8 फिर प्लस 1 नाल कर दो 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू 0 और माइनस 16 माइनस 6 प्लस 6 से प्लस 10 माइनस 2 8 चलो जी हिसाब किताब की बनता है पहला तो ए वाले इकट्ठे कर लो 4a हो गया आ हो गया माइनस 22 माइनस 22 प्लस 10 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 तो 4a इज इक्वल टू 12 ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 ऑप्शन नंबर सी राइट की वैल्यू 3 आ गई क्लियर क्वेश्चन नंबर 45 ओहो क्या हो रहा है 45 नहीं जी 54 दिमाग घूम रहा है ए वेक्टर यानी कि ए कैप एंड बी कैप भी टू यूनिट वेक्टर देते हुए ने एंड ओ इज द एंगल बिटवीन देम 0 0 is 0 then a minus b is equal to a minus b is equal to आ दसना ਆਪਾਂ a minus ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ कौन करेगा इस क्वेश्चन में किसमें आंदा ये वाला क्वेश्चन देखो फिर किवें करना ए कैप माइनस बी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੇਅਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ए ਦਾ ਸਕੇਅਰ मैग्नीट्यूड बी का स्केयर माइनस
2a माइनस 2a वेक्टर b वेक्टर, फिर आएगा अपने को और आएगा cos थीटा, फिर यही आएगा क्योंकि थे a डॉट b बनेगा ना, a डॉट b में आप लिख लिया, लिख सकते हैं। आ की अपने को 1 गिवन है, यूनिट वेक्टर है, आ भी अपने को 1 गिवन है, -2 आ भी 1 1 गिवन है अपने को, cos थीटा है कितना हो गया अपने को 2 - 2 cos थीटा, 2 कॉमन तब 1 माइनस cos थीटा, 2 1 माइनस cos थीटा नु की लिख सकते हैं अपन 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ a ਮਾਈਨਸ b, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਲੀ a ਮਾਈਨਸ b ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ रूट ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आएगा अपने को 2 sin थीटा बाय 2, ऑप्शन नंबर बी 2 sin थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये अपन पूछा गया कई बार, ठीक है। ए इस फॉर्म च भी आ जाता ए माइनस बी, ए इस फॉर्म च भी आ सकता है e1 माइनस e2 का मैग्नीट्यूड, e1 माइनस e2 का मैग्नीट्यूड इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ e1 a plus b ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ e1 plus e2, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपने को रिजल्ट बनेगा। अगर बिच प्लस हो e1 माइनस e2 फॉर्म में भी आ सकता है, आपको इदा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड e माइनस e2 या a माइनस b, कुछ भी दिता हो सकता है, वो आपको मैटर नहीं करता। मैटर आपको की करता है तरीका, फाइंड करने का तरीका की आप क्लियर। तो प्लस वाला तुम खुद करके देख लियो, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो बनेगा 2 cos थीटा बाय 2, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55, a वेक्टर b वेक्टर गिवन ने, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। ए गिवन है बी गिवन है, ए प्लस बी फाइंड कर लो पहला। तो ए प्लस बी की आएगा 3i प्लस 4j माइनस 12k। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड की आएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, यह बन गया 169, 169 का 13, ऑप्शन नंबर ए राइट 30। क्वेश्चन नंबर 56, द वेक्टर लैम, तीन वैक्टर ने कोप लेंदन ने तो दसना लैमडा की होएगा। कोप लेंदन ने डिटरमिनेंट की होएगा 0 रख दो जी, लैमडा 1 2 1 लैमडा -1 2 -1 लैमडा, करो सॉल्व। लैमडा ना सॉल्व किया पहला तो ये आ गया लैमडा स्क्वायर -1, फिर -1 ना किया लैमडा +2, फिर +2 ना किया, ये आ गया इतने की -1 है ना, -1 -2 लैमडा, यह हो गया लैमडा क्यूब माइनस लैमडा +2, सॉरी -2 आएगा, फिर -2 लैमडा 0 का लैमडा क्यूब -2 लैमडा -2 लैमडा -4 लैमडा -2 माइनस का 4। देख लो जी की सैटिस्फाई करता है, 0 तो सैटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 अगर पुट करते हैं आप 1 वो भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 भी कैंसिल 1 भी कैंसिल, -1 देख लो -1 हो जाएगा, +1 -1 भी नहीं कर रहा, -2 देख लो -8 +8 -4, क्या बात हो गई। आंसर कितने मिस्टेक कितने आ रही है, लैमडा 1 2 1 लैमडा -1 2 -1 लैमडा, पहला लैमडा ना ही सॉल्व कर लिया आप ना, आ गया लैमडा स्क्वायर -1, ठीक है। फिर -1 ना सॉल्व किया, -1 ना सॉल्व किया लैमडा +2, ठीक है। फिर 2 ना सॉल्व किया लैमडा -1 -2 लैमडा -1 -2 लैमडा,
के आ 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ -4 ਲੈਮਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -6 ਲੈਮਡਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं 1 करांगे तो आ जाएगा, नहीं कर रहा। -2 देखो -8 +12 -4 -12 +12 हाँ जी -2 कर रहे हैं ओनली -2 ऑप्शन ए राइट। हाँ माइनर मिस्टेक हो गई सी ना थोड़ी जी, बस मल्टीप्लाई करने वाले थोड़ी जल्दबाजी हो गया ये काम। आंसर नाल ध्यान रहूगा। ये तो शुक्र मनाओ अपना कोई आंसर मैच नहीं किया इन्हों चो। अगर कोई भी आंसर मैच कर देता तो अपना तो गलत हो गया सी, एक नंबर चल गया सी अपना। अगर ऑप्शन अपने कोई मैच कर जाती या नन ऑफ दीज होंदा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन का बहुत नुकसान है आपको। अगर 4 ऑप्शन इदा दियां हो तो आपको पता लग जाता कि अपना आंसर सही है। अगर नन ऑफ दीज हो ना तो फिर आप मिनट च नन ऑफ दीज लगा देंगे, इन्ना टाइम नहीं होंगे अपने को कि दोबारा चेक करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए वैक्टर गिवन है, बी वैक्टर गिवन है, तो कर दो जी पहला ए क्रॉस बी फाइंड कर दो। ए क्रॉस बी आई जे क्यू, हाँ 3 1 2 2 -2 4 ये आ गया ए क्रॉस बी सिंपल। आई नाल कीता 4 + 4 8 माइनस जे नाल कीता 12 -4 8 प्लस के नाल कीता -6 -2 -8। हाँ ਇਹਦਾ ਹੁਣ कर दो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये की आएगा 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 8 स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 8√3 क्योंकि 8 स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ओनली बचेगा 8√3। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 58 इफ लैम्डा इज रियल नंबर, लैम्डा कोई रियल है, रियल नंबर है तो लैम्डा इंटू ए वैक्टर दसना की होएगा। लैम्डा इंटू ए वैक्टर स्केलर होएगा, यूनिट वैक्टर होएगा, वैक्टर होएगा, इनर प्रोडक्ट होएगा। दसो जी की होएगा आंसर 58 का राइट आंसर की होएगा। लैम्डा कोई रियल नंबर है, लैम्डा ए वैक्टर की होएगा। आ देखो आ की है लैम्डा रियल नंबर यानी कि स्केलर हो गया। अगर आप किसी भी रियल नंबर की या कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई वैक्टर नाल करते हैं तो वैक्टर ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पैन लग गया। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2i + 4j -6k -5 के लगा लो, ठीक है, तो बैटरी रहेगा अगेन 2 ना मल्टीप्लाई होने तो बाद भी। तो लैम्डा की मल्टीप्लाई आप ए वैक्टर नाल कर रहे हैं तो ए जो ऑल ओवर है ये बैटरी रहेगा अपने को, है ना। तो स्केलर तो हो नहीं सकता। यूनिट वैक्टर आप क्यों आप कह सकते हैं कोई ये यूनिट वैक्टर है, आप क्यों कहेंगे यूनिट है, आपको की पता है यूनिट बनता या नहीं बनता। तो यूनिट वैक्टर आप थोड़ी कह सकते हैं, तो वैक्टर कह सकते हैं, इनर प्रोडक्ट भी आप नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो आंसर हो गया अपना सी राइट। क्वेश्चन नंबर 59 इफ ए वैक्टर आर इज एक्सप्रेस्ड इन द कंपोनेंट फॉर्म एज आर कोई वैक्टर है इसमें आप कंपोनेंट फॉर्म च लिखता xi + yj + zk कैप। तो ਜਿਹੜੇ XYZ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟ ਸਕੇਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੈਕਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्टर। इन्हां विचों वैक्टर किहड़ा है अपने कोले, एक्सीलरेशन, चार्ज, एनर्जी, मास। दसो जी तुहाडा आंसर आना चाहिए जल्दी नाल। इन्हां चारां दे विचों वैक्टर की है अपने कोल, तां इन्हां चारां दे विच जिहड़ा अपने कोल वैक्टर है वो दसो की है। दसो जी कौन दसेगा। इन्हां चारां दे विचों अपने कोल एक्सीलरेशन है जिहड़ा वो वैक्टर है, क्योंकि एक्सीलरेशन कोल की हुंदी है डायरैक्शन भी हुंदी है ते मैग्नीट्यूड भी हुंदा है। चार्ज कोल
डायरेक्शन नहीं होंगी, ओनली मैग्नीट्यूड, एनर्जी को ओनली मैग्नीट्यूड, मास को ओनली मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 61 ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਥਰੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਬਾਊਟ, ਥਰੋ ਤੇ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ O ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ OA। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ O ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ O ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਥਰੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ A ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ OA, AO ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, AO ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, OA ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड द मोमेंट या टॉर्क अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट आ गया तो इनू बोल देंगे O। ये कितना आएगा I प्लस 2J प्लस 3K। क्लियर। फिर O फिर फोर्स, फोर्स अपन दे रखे अड्डी लिख लेंगे आप I प्लस J प्लस K। ठीक है जी। एक्टिंग थ्रो द पॉइंट, एक्टिंग यानी कि एक्टिंग कह दो या थ्रो, ये तो अपन गल कर ही ली थ्रो, तो इनू बोल देंगे A। ये कितना अपने को -2I प्लस 3J प्लस K। ठीक है जी, इन्ना काम अपना हो गया। हुण आपां की फाइंड करना है, सब तो पहला आपां फाइंड करना है OA। 1 सेकंड, ये फाइंड करना है आपां OA। OA फाइंड करो, OA फाइंड किवें करांगे A माइनस O, A माइनस O तो कितना आएगा अपने को -3I प्लस J -2K। आ गया, ये OA आ गया। हुण मूवमेंट ਜਾਂ ਟੌਰਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੌਰਕ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FOA ਕ੍ਰੋਸ F, OA ਕ੍ਰੋਸ F। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਆਏਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਆਏਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ I J K ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। OA ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਨੇ -3 1 -2 और ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ 1 1 1। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। करांगे तो I नाल करांगे, पहला I नाल कराया था 1 प्लस 2 3 माइनस J नाल कराया -2 प्लस 2 -1, K नाल कराया -3 -1 -4K। यानी कि हो गया 3I प्लस J -4K, 3I प्लस J -4K। ऑप्शन नंबर ए राइट। ये होंगे अपने को मूवमेंट या टॉर्क। क्लियर। बस ये गल ध्यान रखनी है, अबाउट ਨੂੰ O बोलांगे, थ्रो ਨੂੰ A बोलांगे ਤੇ फाइंड करांगे OA। उस तो बाद लवांगे इन्हां दी क्रॉस प्रोडक्ट, बस वैक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ वर्क डन ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ डॉट प्रोडक्ट। बस आ ध्यान रखना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 अगर हजे भी नहीं क्लीयर होया ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ क्वेश्चन नंबर 62 है। ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ सॉल्व करना है ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है जी, कमेंट कर दो ਇਹਦਾ राइट आंसर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट दिता होया, फोर्स दिता होया ते थ्रो द पॉइंट दिता होया। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਹ क्वेश्चन खुद करना ट्राई। अगर ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ क्वेश्चन नंबर 62 ਪਾ ਕੇ डाउट लिख दो बस। फिर आप कल वाली क्लास में दोबारा करना। ठीक है जी। तो कल वाला जो सैशन रहेगा अपना वो इंपोर्टेंट सैशन रहेगा, क्योंकि कल आप करने ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें भी अज तक अपने आए हुए। क्लियर। क्लास इज ओवर। क्लास अगर तुहानू वधिया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ते चैनल को सबसक्राइब कर दो जिन्हें जने भी अगर नवे ने पहले दिन जुड़े ने। ठीक है जी। ते
ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਕਲਾਸ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।